آج کا جو ہمارا موضوع ہے کیا ہے وہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات۔ پہلے ہمیں ایک سمجھنا ہے، ایک لغوی اعتبار سے معجزہ کا تو کیا، کرامت کا تو کیا، آیا کا تو کیا، یہ تھوڑے الفاظ ہیں تمہیں سمجھنا تاکہ تمہیں کون سی چیز کس کی ہے یہ تمہیں پہچان کر لے سکے۔ پہلی بات یہ کیا ہے تو آیت اللہ بولتی، کیا ہے؟ آیت اللہ۔ آیت اللہ مانے اللہ کی نشانی۔ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص نشانی زمین کے اوپر کوئی بھی آئے تو اسے کیا بولتی؟ آیت اللہ بولتی، چاہے وہ نبی کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور بندے کے اوپر ہو، یا کسی خاص زمین کے اوپر ہو، کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ میری آیت ہے، یہ میری نشانی ہے کہ بولا گا تو وہ کیا بولتے؟ اسے آیت اللہ بولتی، اللہ کی نشانی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب کاف جو ہے ہماری نشانیوں میں سے ہے، اور اسی طرح جو ہے صفا مروہ جو ہے ہماری نشانیوں میں سے ہے، اور اسی طرح کئی ایسے چیزیں ہیں یہ آیت اللہ میں آتی۔ یہ ایک نمبر 1 تمہیں یاد رکھ لینا، اللہ کی نشانی، کرامت معجزات، یہ پورے کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں۔ دوسری چیز کیا ہے تو اسی آیت اللہ کو، یعنی اللہ کی نشانی کو، اللہ تعالیٰ کی اس عمل کو کسی پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظاہر کرا تو، کسی پیغمبر کے ذریعے ظاہر کرا تو اسے معجزہ بولتی۔ کیا بولتی؟ معجزہ بولتی۔ معجزہ مانے عقل کو عاجز کرنے والی چیز، عقل کو عاجز کرنے والی چیز، یعنی عقل نہیں مانتی اسے۔ عقل کو عاجز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ سمجھ میں گیا ہے؟ عقل کیوں نہیں مانتی؟ عقل جو ہے جو چیزاں ہمیں دیکھتی ہیں اس کے مطابق چلے تو مانتی ہو، نہیں کہ تو نہیں مانتی۔ مثال کے طور پر آگ جو ہے جلانا، اس کا کام یہ ہمارے عقل میں ہے، اور اسی طرح جو ہے پانی جو ہے آگ کو بجھانا یہ ہماری عقل میں ہے، اور اسی طرح جو ہے کئی ایسے چیزیں ہیں یہ ہماری عقل میں ہے۔ سو اب نہیں بھائی آگ جو ہے جلاتی نہیں، وہ ٹھنڈک بن جاتی ہے، سلامتی بن جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ عقل نہیں مانتی، یہ چیز مانتی کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا قوانین نہیں، کوئی قدرت کی قوانین کے پابند اللہ نہیں ہے۔ اللہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود ان کو آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہی آگ کو اللہ تعالیٰ سلامتی بنا ڈالا، ٹھنڈی بنا ڈالا۔ حالانکہ آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا۔ آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا۔ اب تمہیں یہ بولتی ہیں بھائی میں آگ میں جو ہے ہاتھ رکھتا ہوں یہ جلاتی نہیں کرتا، میں کیا بولتا ہوں؟ کہاں ہوتا ہے وہ عقل نہیں مانتی کہ بولتی۔ سمجھ میں گئے؟ لیکن یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ آگ جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن عقل نہیں مانتی۔ تو ایسا عقل کو جو ہے عاجز کرنے والے چیزوں کو پیغمبراں کر کو دکھائے تو اللہ تعالیٰ جو ان کے ذریعے کرایا تو ایسے چیزاں کو کیا بولتی ہے؟ ہمیں معجزات بولتی۔ سمجھ میں گئے؟ معجزات کا تو کیا مطلب؟ قدرت کے جو قوانین ہیں یہ توڑ کو ایک واقعہ پیش ہوتا ہے۔ اسی میں اور ایک مثال، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارے، قرآن میں آتا ہے نیل کا ندی جو ہے وہ چیر گیا، اس میں راستہ بن گیا اور انہوں پار ہو گئے، اور اس کے بعد فرعونیاں اس میں آ گئے، اللہ تعالیٰ پھر بند کرا، ڈوب گئے۔ ابھی عقل کا ماننا بولو، ندی چیرنے کا کہیں کرے وہ بولتے ہمیں ہے نہیں، کیا عقل نہیں مانتی۔ لیکن اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، اسے کوئی پابند نہیں ہے۔ تو اللہ کراتا ہے کس کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے۔ اسے ہمیں کیا بولتے؟ معجزہ بولتے۔ سمجھ میں گیا اب بات؟ اور رہی بات کرامت، رہی بات کرامت، کرامت کا مطلب ہے کرم ہوا۔ کرامت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہوا ان کے اوپر۔ سمجھ میں گیا ہے؟ یہ کس کے ذریعے ہوتی کہ تو غیر نبی کے ذریعے ہوتی، یعنی صالحین، اولیاء اکرام، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز کو کرائے تو اسے کیا بولتے؟ ہمیں کرامت بولتی۔ سمجھ میں گئے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرے تو وہ کام کو کیا بولتی؟ آیت اللہ، نشانی ہے اللہ کی۔
नबी के जरिए करवाए तो कुदरत कवानीन को तोड़कर अकल को आजिज करने वाली एक मोजजे को, एक चमत्कार को, एक ऐसा अजूबे का अल्लाह ताला दिखाए तो उसे क्या बोलते हैं? हमें मोजजा बोलते हैं। अगर उसी चीज को अल्लाह ताला जो है किसी वली के जरिए कराए तो उसे क्या बोलते हैं? हमें करामत बोलते हैं। समझ में आए? मिसाल के तौर पर असहाब काफ जो है 309 साल सो गए हिजरी के मुताबिक, 309 साल ईस्वी के मुताबिक 300 साल सोए। अभी अकल का मानती बोलो 300 साल सोना। हालांकि वो कौन थे? नबिया नहीं थे। कौन थे? उन्होंने वलैन थे। तो अल्लाह उनको कितने साल सुलाया है? 309 साल सुलाया। अब ये जो चीज है उनके ऊपर हुआ, ये क्या है? ये करामत। समझ में क्या है? उनके ऊपर क्या हुआ? करम हुआ। करामत का मानी क्या है? उनके ऊपर अल्लाह का करम हुआ। मिसाल के तौर पर ऐसी एक मिसाल कुरान में, हमारे सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में एक बंदा आता है, एक सालेह बंदा आता है जो किताब का इल्म रखता है। वह जिन से पहले कई मील के दूर में है सो मलके सबा का तख्त, उनका कुर्सी जो है लेकर आता है। समझ में गए? तो ये उन्होंने क्या है? गैर नबी है। उनके जरिए कुछ चीज सादिर हुआ, वो अल्लाह बयान कराए, तो ये क्या हुआ? करामत हुई। समझ में गए? इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा के ऊपर अल्लाह कंट्रोल दिया था। उन्होंने हवा को जैसा चाहे वैसा फेरते थे, और उनकी जो कश्ती है पानी पर नहीं चलती थी, हवा में उड़ती थी। कई हजार लश्कर को लेकर उन्होंने कश्ती में बैठकर हवा में उठ को जाते थे। समझ में गए? और जिन्नों के ऊपर अल्लाह ताला उनको हुकूमत दिया था। ये पूरा कुरान में बयान करता हूँ। तो ये पूरे चीजें क्या है? तो मोजजा, गैर नबी करे तो करामत। समझ में गए? और थोड़े चीजें ऐसे है थी, ये शैताना जिन्नाता और काफिरा भी करती, और थोड़ी चीजें ऐसे भी है। ये तुम ना को ज्यादातर सुने है नहीं इस बात को। इसकी मिसाल ये है, क़यामत के करीब दज्जाल आता है। क़यामत के करीब दज्जाल, हालांकि कौन? उन्हें अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन। अल्लाह उसे तैयार करके भेजे। उन्हें क्या करता है? एक इंसान को दो टुकड़े करता है। हदीस शरीफ में साफ है इसके बारे में। दो टुकड़े करता है, दो टुकड़े करके फिर जोड़ को जिंदा उठाता है। अब मान मुझे खुदा को बोलता है। अगर कोई खुदा माने उसे, उन्हें जो है एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोजख रख लिया है। मुझे माने तो ती जन्नत में डाल दूं, नहीं माने तो ती दोजख में डाल दूंगा। जो कोई भी उसे ईमान लगाता है उन्हें जन्नत में नहीं जाने का, वाकई जहन्नम में जाते हैं, लेकिन उसके सामने क्या होता है? जन्नत में जाता है। जो उसे इनकार करता है उन्हें लेकर जहन्नम में डालता है। यहाँ हालांकि उन्हें किस में आता है? जन्नत में आता है। अभी इतनी ताकत दी है अल्लाह ताला, उन्हें मुर्दे को जिंदा भी करके बताता है, हालांकि कौन है? अल्लाह का दुश्मन है। ऐसे चीजों को क्या बोलती है? तो इस्तिदराज बोलती। क्या बोलती? इस्तिदराज। आयतुल्लाह, मौजूजा, करामत, इस्तिदराज। आप बाज़ औक़ात तुम ये भी सुनते हैं फलाना साधु जो है ये कर को बताए, फलाना काफिर जो है ये करे, फलाना वाला जो है इतने साल जिंदा हुए। अभी तुम्हें कई ऐसे वाक़या सुनती, फलाना जगह गए तो बिच्छुआ नहीं लड़ते, फलाना जगह गए तो जो है इनके काफिरान के यहाँ भी, मुसलमाना के यहाँ भी ऐसे पाए जाती, और काफिरान के यहाँ भी ऐसे पाए जाते। फलाना वाला जो है ये कर को दिखाए, ये पूरे काफिरान के जरिए अगर चले तो इसे क्या बोलते? हमें इस्तिदराज बोलते। वलैन के जरिए चले तो करामात बोल, नबियान के जरिए चले तो मौजूजात बोल, और डायरेक्ट कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ तो उसे क्या बोलते? आयतुल्लाह बोल। समझे बात को? हमारी ईमान आयतुल्लाह पर भी है, मौजूजात पर भी है, करामत पर भी है। समझ में गए? हमें अल्लाह की निशानियों को भी मानना है, मौजूजात को भी मानना है, करामात को भी मानना है। समझ में गए? लेकिन कैसा मानना? क्या है इसका दायरा? जो बोले वो मानना है, जो सुने वो मानना है, क्या रहना इसका? ये एक बात तुम्हें समझे तो कोई भी झूठे बातों को करामाता नहीं समझते, जो वाकई करामाता है उसे इनकार नहीं करते। बाज़ औक़ात इंसान कैसे बन जाते हैं तो ये फर्क मालूम ना को, माने तो सब भी मान लेते बैठती हैं, अब माने तो सब भी मान लेते बैठती हैं, क्या झूठ सच सब मान लेते, नहीं का तो क्या करती है? सब भी झूठे बात आने भाई, कोसे वाले हैं, कोसे करामत आने हैं, खाली चुके आड़े खड़े लोग हम बात करते सब बात को पूरा इनकार कर को दूसरे जमाता में मिल जाती। हमें क्या है? हमें सबको भी मानती, अहले सुन्नत वल जमात वाले सबको भी मानती, लेकिन फर्क करना,
क्या फर्क, क्या है वो दायरा का? तो अल्लाह के बारे में जो भी मानना है वो अल्लाह की किताब से मानना, अल्लाह के रसूल जो बोली हदीसा में वो मानना। समझ में गए? पैगंबरों के बारे में जो भी मानना है मौजूदा, चाहे वो मूसा की लाठी के बारे में हो, उन्होंने नाइल नदी को चीरने के बारे में हो, या उन्होंने एक पत्थर के ऊपर मारे तो 12 चश्मे फूटना हो, या ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा होना हो, या आदम अलैहिस्सलाम जो है बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा होना हो, या यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जो है जिंदगी बसर करना हो, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडक होना हो, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को जब छूने गए तो उसके बादशाह के हाथ पड़ जाना हो, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे को जुबा करने गए तो अल्लाह जन्नत से दुम्बा उतारना हो, या ईसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला गैर मामूली तरीके के ऊपर उठा लेना हो, और मूसा अलैहिस्सलाम के कई ऐसे वाकयात, और उन्होंने हाथ में के जो लाठी फेंके तो चकले का लाठी जो है क्या बनता था, साम बनता था, उन्होंने बगल से हाथ निकाले तो वो रोशन बन जाता था, है नहीं क्या? ये सब हमें किससे मानते हैं बोलो? ये पूरे कुरान में। समझे आप बात? तो कोई भी पैगंबर के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले कोई भी पैगंबर के बारे में अगर कोई ऐसे मौजूदा सुनना है, हमें किससे सुनना? कुरान से सुनना। समझे बात आपको? अगर उन्हें कुरान का बोलता रहे, बस कोई बोलता है उसकी मर्जी आए सो, कहा है भाई कुरान में ये दिखाता नहीं, या सही हदीस में, क्या है, सही हदीस में काम भी आया नहीं, सही हदीस में काम भी आया नहीं, चुके बोलता है उन्हें मुंह का ऐसो, तो हमें इसे क्या करती? नहीं मानते। समझ में? क्या जो भी अल्लाह और उसके रसूल बयान फरमाई, आयतुल्लाह को, मौजूदात को हमें मानते। इसी तरह अब करामत, अब नबियान तो आने वाले नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, नबूवत खत्म हो गए, तो जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मानना है मौजूदे, किससे मानना है हमें? कुरान से या सही हदीसान से। याद रख लो ये बात, कुरान से या हदीसान से। कौन हंदे क्या तो भी बोलेंगे, ये कौन सी हदीस में है, कहाँ पे है, समझ में गए? ये बोलना उन्हें, वरना हमें नहीं, हमारे ऊपर उसे उस चीज के ऊपर हमें ईमान लगाना जरूरी नहीं। समझ में गए? एक चीज फर्क करना। अब करामत, अब देखो हुजूर के बारे में तो हदीसा में आती है, अब वलैंग का तो क़यामत तक आती। अब ये कैसा मानना हमें? कौन से चीजों को मानना, कौन से चीजों को नहीं मानना? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया सो, क्योंकि ऐसे बयान करते हैं, ऐसे बयान करते हैं, थोड़े शायद पैगंबर आम से भी ऐसे वाक़या जो है नहीं मिलते हम। तो ये बहुत गौर से सुनो, जिंदगी भर इस बात की याद रख लो, वलैंग के बारे में करामता बरहक है, वलैंग के बारे में करामता बरहक है। करामत खिलाफ अकल हो सकती है, खिलाफ अकल हो सकती है, लेकिन खिलाफ शरीयत नहीं हो सकती। कौन सी भी वली मगरिब के 3 रकात नहीं 5 रकात का तो नहीं मानते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका अकीदा है। खिलाफत शरीयत की करामत को ना मानना हमारे ऊपर वाजिब है। समझ में गए? करामत खिलाफ शरीयत नहीं रहना, कोई बेहयाई के ऊपर मबनी रहना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बदलाने वाली नहीं रहना। समझ में गई? मैं हमारा मुरीद हो गए तो बस हमें जन्नत में बुला लग जाती है बोलने से, ये पूरे, और अल्लाह बोला उनसे बात करा, अल्लाह का कलाम है, आवाज आया, उन्होंने फलान जगह नमाज पढ़ते थे, ये पूरे बात झूठे बात है। अल्लाह ऐलान कैमरा में बोलता है, पूरे बात झूठे बात। हालांकि जाको ये लोकल उलमा से नहीं, मुफ्तियान इकराम से पूछो, क्या भाई अल्लाह किसी शख्स से बात करता है क्या? किसी शख्स से बात करता है क्या? तो जवाब देती नहीं, सिवाय पैगंबरों में से, उनमें से भी किसे? मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला बराह रास्त बात करे, किसी से नहीं बात करे अल्लाह ताला, सिर्फ मूसा से। वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, सिर्फ अल्लाह ताला जो है मूसा अलैहिस्सलाम के शरफ बख्शा सो, दूसरों से अल्लाह ताला डायरेक्ट कलाम भी नहीं करा, तो अल्लाह आवाज दिया, अल्लाह ताला उनको बख्श दिया। इसके बारे में पीरा ने फिर खुद तो फरमाते उनकी सीरत में, देखो एक मरतबा उन्होंने सहरान में थी, रेगिस्तान में थी, बहुत प्यास होती है, बहुत प्यास जो है ये होती है, तो एक बारिश का टुकड़ा जो है नमूदार होता है, उसमें ऐसी अब्दुल खादिर तुम्हारे मुजाहदात को हमें कबूल फरमाई और तुम्हारी रियाजात को हमें कबूल फरमाई, आज से जो है तुम्हें नमाज पढ़ना जरूरत नहीं हो।
ये बाकायदा आवाज आती है। तो पिराने पीर फरमाती जब मेरे नबी को, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह नमाज माफ करा नहीं, उन्होंने रात भर खड़े होकर जो है नमाज पढ़ते थे, यहाँ तक उनकी पाँवों का सूज आ जाता था, तो मुझे कैसा होता है बोल को ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते। क्या पढ़ते? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते जी। वो जो शैतान है बादल का टुकड़े में लेकर आए इस वाला, बादल का टुकड़े के पीछे से आवाज दिए इस वाला जो है उन्हें क्या होता है, जमीन में गिरना शुरू होता है। गिरते वक्त भी उन्हें ये बोलता है, ऐ पीराने पीर तुम्हें तुम्हारे इल्म की वजह से बच गए को बोलता है। क्या बोलता है? तुम्हारे इल्म की वजह से बच गए बोलता है। पीराने पीर फरमाती मेरे इल्म के वजह से नहीं, अल्लाह के फजल के वजह से मैं बच गया। कहते समझ में गया है? मशहूर झूठ पीराने पीर के बारे में एक बोल को मैं करामत में आ जाता हूँ, मौजात में आ जाता हूँ। एक मुरीद था कहते उनका, उन्होंने जो है लोटे को किबले की तरफ नहीं रखेगा। मुरीद था कहते उनका, मुरीद लोटे को किबले की तरफ नहीं रखेगा। ये क्या दीन में आता है क्या जी? लोटे को किबले की तरफ रखना कहते से हमारे दीन में है क्या? या हमें हमें किबले की तरफ बैठना कहते से रूल क्या तो है क्या? है ही नहीं क्या? इसे क्या तो है रूल का? तो भाई हम इधर भी बैठती, इधर भी बैठती, इधर भी बैठती, सिर्फ नमाज के लिए किबला हमारे लिए है। तो अब इन्हों क्या बोलती हैं वो करामत में देखो, तो रखे नहीं कहते। पिराने पीर को जो है ये गुस्सा आ गया, उनके ऊपर नजर डाल डालेंगे तो उन्हें राख बन गया है। फिर लोटे के ऊपर नजर डालेंगे तो किबले की तरफ फिरेंगे। समझ में गए? ये क्या है? खिलाफ अकल है तो है, खिलाफ शरीयत भी है। क्या उन्हें मुर्तद होया था तुम्हें कत्ल करने? है ही नहीं क्या? क्या उन्हें किसी का कत्ल करा था? बस क्या करा था? उन्हें लोटा ऐसा फिराया है, उसे मन मारते हैं लोटा। हालांकि अल्लाह के रसूल अनस बिन मालिक उनके खादिम थे, अल्लाह के रसूल के 10 साल उनके काम करी। और अनस बिन मालिक फरमाते हैं कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे डांटे नहीं, कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे डांटे नहीं। कभी जो है बाज़ औक़ात हुजूर एक काम बोलते थे, मैं बाहर जाकर वो काम को बिसर कर मैं खेलने तक बैठ जाता था, फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम तू क्यों नहीं कराएगा को बोलते नहीं। बाज़ औक़ात उनके घर में मैं बर्तनों को जो है फोड़ता था, मेरे हाथ से गिर जाते थे, तो अम्मा आयशा वगैरह जो है कुछ डांटने के वास्ते शुरू हुए तो अल्लाह के रसूल फौरी फरमाते थे ये अनस की क्या है, इसकी ये तकदीर में ऐसा है चलने का। ये हमारे नबी थे। अब नबियों के पैरोकार वलियान जो है ऐसे एक लोटे रखे इनको जला देंगे क्या? ये मान सकते हैं हमें ये बात को? तो किसके ऊपर झूठ बांधते हैं? पीराने पीर के ऊपर, उनकी कैरेक्टर के ऊपर। समझे तुम्हें बात को? ऐसा है कि अब देखो उनकी करामत, एक बहुत बड़ी करामत क्या है? सच बोलना उनकी बहुत बड़ी करामत है, सच बोलना उनकी बहुत बड़ी करामत। और सामने जो है बलवाइयां हैं, उन्होंने जो है डाकुआ हैं, उन्होंने तुम्हारे पास नहीं को बोले तो ये मान नहीं सका, मेरे बगल में है ये दीनार को खोल को दिखा दी। उनकी सच्चाई की वजह से ईमान लेकाती, यह है करामत। उनकी सच्चाई की वजह से वो जो डाकुआ है ईमान लेकाती, यह है करामत। क्यों? अल्लाह इनके जरिए उनके ऊपर करम किया, अल्लाह इनके जरिए उनके ऊपर करम करा। और इसी तरह जो है उनके कई ऐसे वाकया थे। और एक बंदा आता है जी तुम्हारे करामत हम बहुत मशहूर देखने आया हूँ, एक बंदा टेस्ट करता है 3 दिन हुए तो भी कोई सी करामत दिखता नहीं, 4 दिन हुए तो दिखता नहीं है, बाकायदा मुस्तनद किताबों में 5 दिन हुए तो भी दिखता नहीं। उन्हें जाता है तो पिराने पीर पूछती कई को आया है तू, कई को जाता है, ना मिला ना मुलाकात कराया, ना कोई दरस सुना, ना कोई इल्म की बात पूछा, जाता है तू बोल को पूछती क्या ना ये तुम्हारे करामत जो है बहुत सुन को आया था, मैं यहाँ देखे तो कोसे भी नजर आया नहीं। तो पीराने पीर फरमाती क्या मैं इन दिनों में एक वक्त का नमाज, यहाँ तक कि तकबीर उला तो छोड़ा था क्या? छोड़ा था क्या? नहीं। कभी मैं झूठ बोला था? नहीं। क्या मैं किसी का चुगली करा था? क्या मैं खिलाफ शरई काम कोई करा था? ये है मेरे करामतान सबसे बड़े। समझ में गया है? तो फर्क ऐसा करना हमें, कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात झूठी है। अब पैगंबरों के बारे में कहते कुरान हदीस में आते सो मानना। समझ में गया भाई? आज इंशाअल्लाह ताला ये फर्क को तुम्हें मलहूज रखे तो करामता इनकार भी करते नहीं और झूठे झूठे बातें भी नहीं मानते।